Today I am dictating you lesson 2, a gift of chappals of class 7th. Before starting the chapter, if you have not subscribed my video, then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Let's start the chapter, a gift of chappals. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin लाली, रवि एंड मीना। मृदु एक यंग गर्ल है, मद्रास में जो रहती है, जिसको कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विद तापी, तापी ग्रैंडमदर को कहते हैं एंड ताथा ग्रैंडफादर को कहते हैं। वो ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है। एक दोपहर तापी उसे उसकी मौसी रुकुमनी के घर उसके कज़न से लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए ले जाती है। Smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल गए और रवि ने मृदु को घर से खींच लिया। तो उसने बोला, रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स को बाहर उतारने दो, और बड़े काले रंग की जो चप्पल थी उसकी तरफ उसको खींच दिया। वास्तव में वो जो चप्पल थी वो धूल से भरी हुई थी और उसमें एक अंगूठे का निशान भी था, बना हुआ था। दो बड़े पैर की वो चप्पल थी और उनमें उंगलियों के लंबे और टेढ़े निशान थे। मृदु did not have much time to wonder about whose sleepers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk with a coconut half selves. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Patti will leave for our Padu Mama house if she knows we have a cat. मृदु को यह सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि वे किसकी चप्पलें थी। रवि ने उसे पिछवाड़े के घने बेर की झाड़ी के पीछे खींचा था। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर जिसमें कि रेत भरा हुआ था, एक बहुत छोटी सी बिल्ली का बच्चा था। एक नारियल के आधे खोल से वह दूध पी रहा था। मीना ने बोला कि आज सुबह ये हमें गेट के बाहर मिला और यह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। यह एक राज है। अम्मा कहती है कि अगर उसे पता चला कि हमारे पास कोई बिल्ली है तो उसकी जो दादी हैं वह हमारे पादू मामा के घर से चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, do not bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted to the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble?" I told her. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to drink of some other way to feed महेंद्रन। लोग हमेशा जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें घर लाते हैं तो वो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि इन्हें यहाँ मत लाओ, घर में इन गंदे जीवों को मत लाओ। रवि ने कहा, क्या आप जानते हैं कि रसोई से थोड़ा सा दूध निकालना भी कितना मुश्किल हो जाता है? पाती ने अभी अभी मुझे एक गिलास लिए हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है और मैं इसे पीना चाहता हूँ, और उन्होंने जिन निगाह से मुझे देखा तो मुझे वो सारा का सारा लगभग दूध पीना पड़ा।
तब वह ग्लास वापस लेना चाहती थी, तो मैंने बोला, पाती पाती इसे मैं खुद ही धो कर रख दूंगा, आप परेशान क्यों हो रही हैं। पता है, मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे उस नारियल के खोल में दूध डालने के लिए दौड़ना पड़ा और फिर वापस ग्लास को धोकर, जिससे कि उनको कोई शक ना हो, उसे रखना पड़ा। अब हमें महेंद्र को खिलाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, उसने कहा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्र, इस छोटी किटी का नाम महेंद्र है। मृदु प्रभावित हुई, यह एक वास्तविक नाम था, न केवल एक प्यारा किटी बिल्ली का नाम। Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punai. MP Punai for short if you like. He is fine beard of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what is the emblem of ancient Pallava king was, do not you? He looked expectantly at Mridu giggled. वास्तव में जो उनका नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है। ये जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है वो है MP पुनाई। यह एक बिल्ली की अच्छी नस्ल है। ज़रा उसके फर की ओर देखो, उसने कहा, शेर के अयाल की तरह है। और आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था? आप जानती नहीं? रवि ने मृदु की ओर देखा। मृदु खिचखिचा के हंसी। Think I am joking? Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you do not know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Tha, etc. Fact is, Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion album of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt. अब वे कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, ज़रा ठहरिए, मैं आपको कुछ समय में दिखाऊंगा। यह तो पक्का है कि आप हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या आप महाबलीपुरम में नहीं गई हैं? उसने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कहा। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो मैंने वहाँ पर उनके रिलेटिव्स, दादा दादी के स्मारक देखे थे और वगैरह वगैरह, मतलब अलग अलग स्मारक देखे थे। वास्तव में महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली की वंशज है, एक करीबी रिश्तेदार, साइंटिफिकली शेर के अलावा और कोई नहीं। पल्लव सिंह, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि कड़वी बेर की झाड़ी की ओर चला, एक टहनी ऊपर और नीचे लहराते हुए उसकी चमकीली आंखों को दिखाकर बोला, यह बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा और कोई नहीं। और अगर मैं आपको याद दिला सकता हूँ तो उन्होंने प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा की थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। उसे अपनी ही आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु ने एक दूसरे को देख आंखें मटकाई। वट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग? मृदु डिमांडेड। आपको इससे क्या करना है? मृदु ने सवाल किए। हु? आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस। बास्टेटिया टिल दैट इज इट। हु? मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्ली जो है वंशज है। मिस्र में बिल्ली को भगवान से देवी है, मीन्स उनकी पूजा होती है। So well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was a Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punai here. Ooh, ick. He shrieked, very pleased with himself. इसीलिए ठीक है, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लव
जहाज़ों में छिप कर आया था और उसका जो वंशज है महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली था, जिसका वंशज है महेंद्रन। रवि ने एक छोटी टहनी को लहराया और एमपी पुनई यहाँ इधर वह चिल्लाया और खुद में वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's airful whoop eek was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, M.P. Punai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried down towards a bamboo tray of the red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. The screeching went on and on. What's that noise? Said Mridu. That Lali learning to play the violin, grunted Ravi. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali all the time derailing, going completely off track. रवि जो है अपनी बिल्लियों से जुड़ी हुई अलग अलग बातें बता रहा है। तभी एक उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, क्रीक करके। वो आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही थी। मृदु डर गई और महेंद्रन भी डर गया। डर की वजह से महेंद्र जो है वो उछल के एक थाली पे चढ़ गया जहाँ पे लाल मिर्चियाँ सूख रही थी और क्रीच की आवाज़ फिर आने लगी। मृदु ने पूछा कि क्या है। रवि ने बताया कि जो लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है और कुछ नहीं है, यह आवाज़ वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांक कर देखा तो देखा कि लाली जो है वो वायलिन बजा रही है। रवि जो है वो बड़बड़ाता है कि जो लाली है वो कभी भी वायलिन बजाना सीख नहीं पाएगी, क्योंकि म्यूजिक मास्टर जो है वो एक ट्रेन की तरह जैसे सीटी बजाता रहता है और जो लाली है वो सारा समय उस पटरी से उतरती चली जाती है, इसीलिए वो वायलिन बजाना सीख नहीं पाएगी। Guys, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Mridu crept up the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out of her eyes, glazed with concentrated in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly black head with a fringe of oiled black hair falling around his ears, and her old-fashioned twift, a gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold vestige, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. He played a few notes. Lali strummed behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rail and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at that bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. Square. There was Lali, derailing again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh! Ravi, send the beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for a past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. अब मृदु जो है वो खिड़की तक आई। लाली थोड़ी दूर ही बैठी हुई थी। उसने देखा कि अजीब ढंग से वायलिन पकड़े हुए थी, वो गलत ढंग से वायलिन पकड़ा हुआ था उसने, और उसकी कोहनी बाहर की ओर झुकी हुई थी। उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी और उसके संगीत मास्टर जो थे उनकी हड्डी नुमा आकृति थी
उनकी पीठ के पीछे खिड़की थी, जहाँ पे वो बैठे हुए थे संगीत मास्टर, उनके पीठ के पीछे खिड़की थी जो लगभग वो गंजेई थे और उनके पीछे की तरफ थोड़े थोड़े बाल थे। साइड से उनके थोड़े थोड़े बाल थे जो कि तेल में सारे सने हुए थे। एक उन्होंने अपने गले में सोने की चेन पहनी हुई थी और एक हीरे की अंगूठी थी जो उनके हाथ में वायलिन बजाते समय ऊपर नीचे होते समय चमक रही थी। और उसका बड़ा पैर उसके सोने की तार की डिज़ाइन वाली जो धोती थी उसके छोर से थोड़ा बाहर ही निकला हुआ था और समय के साथ जब वो बजाते थे तो वो ऊपर नीचे होता रहता था। उसने फिर कुछ नोट्स वायलिन में चलाए। लाली अपने वायलिन की ओर झुकी हुई थी और उससे काफ़ी असहाय सी लग रही थी, परेशान लग रही थी कि उस क्या अंतर है। संगीत मास्टर के नोट्स हवा में तैरते हुए एक धुन के रूप में पिरोते हुए लग रहे थे और यह जो बजा रही थी वह रेल के पहिए की तरह था, जो रेल में आसानी से फिट तो हो जाता है पर वो कहीं मैच नहीं खाता। रवि ये धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। मृदु ने उस विशाल घबराए हुए हाथ को आसानी से वायलिन तक ले जाकर घुमाते हुए देखा, जिसे प्यारा संगीत बन गया। क्वैक क्वैक, लाली फिर से पटरी से उतर गई। अम्मा, गेट में एक भीख मांगने वाले की आवाज़ आई, अम्मा, ओ अम्मा। रवि, इस भिखारी को दूर भेज दो, उसकी माँ ने पीछे से बरामदे में से आवाज़ लगाई, जहाँ वह तापसी के साथ बातें कर रही थी। वह पिछले हफ्ते से हर दिन वहाँ भिखारी आ रहा था भीख मांगने के लिए और अब वह समझ गया है कि भीख मांगने के लिए और वह कोई और घर देख ले। पाती ने तापी को समझाया कि वह रोज़ आ जाता है और अब वो कोई अपना और घर देख ले जहाँ से उसे भीख मिले। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wall might be, but it certainly was not feeble. It begins in a deep, strong rumble somewhere in the withered belly and came booming out his mouth with his few remaining teeth, stained brown with betel chewing. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi did not have to repeat it all. The beggar, what his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he does not have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena, Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I do not know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did not have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मृदु और मीना जो थे उन्होंने रवि का पीछा किया। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। उसने अपना ऊपरी कपड़ा नीम के पेड़ की झुकी हुई टहनी के नीचे फैला दिया।
वह कपड़ा उसने भिक्षा के लिए फैलाया था। भिक्षा के आने का इंतज़ार करते हुए उसने थोड़ी सी झपकी लेने के लिए तैयार ही हुआ था। चलो जाओ, रवि ने सख्ती से कहा। मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है कि आपको भीख मांगने के लिए एक और घर खोजिए, मतलब दूसरे घर को आप खोजिए, कहीं और से भीख मांगिए। भिखारी ने अपनी आंखों बहुत चौड़ी खोली और एक एक करके सभी बच्चों की ओर देखने लगा। इस घर की महिलाएं, उन्होंने अंत में घुटी हुई आवाज़ में कहा, बहुत दयालु आत्माएं हैं। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक अपनी तन और आत्मा को उनकी दरिया दीदी पर एक साथ रखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे मुझे दूर कर देंगे। उन्होंने आवाज़ लगाई, अम्मा, ओह दुख की बात है। यह उनका विलाप हो सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। यह उनके मुरझाए पेट से कहीं एक गहरी मजबूती, गड़गड़ाहट की आवाज़ थी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे वो उसकी गड़गड़ाहट थी। पान चबाने के कारण उसके दांत भूरे दिखाई दे रहे थे। अब रुकुमनी ने कहा था रवि से कि उसे बताओ कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है और फिर यहाँ पर वो कभी ना आए, वो उससे तंग आ गए हैं। रवि को, भिखारी को सब यह दोहराना आसान नहीं था। रवि को ये बोलना कि मेरी मम्मी ने ऐसे बोला है, उसके लिए आसान नहीं था। वहाँ नीम के पेड़ के नीचे उसकी माँ ने जो कहा था वह सब सुनाना उसके लिए आसान था। भिखारी उठकर बैठ गया। मैं जाऊँगा, भिखारी बोला। वह थक गया था। केवल मुझे यहाँ नीम के नीचे विश्राम करने दो, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। सूरज बहुत गर्म है, उसने कहा, और सड़क पे जो है वो तारकोल बिछा हुआ है और मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। अपने नंगे पैरों के तलवों पर गुलाबी छीलने वाले फफोले दिखाते हुए वो उनको बताता है। मुझे लगता है कि आपके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु मीना रवि से फुसफुसाया। क्या तुम्हारे घर में कोई दूसरा पुराना जोड़ा है? मुझे नहीं पता, रवि ने बोला। मेरे पैर उसके पैर में फिट करने के लिए बहुत छोटे हैं, और नहीं तो मैं उन्हें अपनी चप्पल दे देता। और रवि के पाँव जो थे वो मृदु और मीना के पैर से बड़े थे। भिखारी अपने ऊपर कपड़ा हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और सड़क की ओर देख रहा था, डर के मारे कि उसे फिर वही गर्मी में चलना पड़ेगा। दोपहर की गर्मी बहुत तेज़ होती है और तारकोल जो था वो चमक रहा था। उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना ने बोला कि उसको अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर रही हैं, मतलब आंसुओं से भर रही हैं कि उसे इतनी गर्मी में चलना पड़ेगा। यह सही नहीं है। इश, said Ravi. I am thinking about it, bubbling. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So, where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed that she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby but struggy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said. Picked them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Here, said Ravi to the beggar, drop the slippers in front of the old man. Wear these and do not come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, and he vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched of his chappals in the veranda, where he had put them. Lali, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu, and Meena silently watched Lali, and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look between them.
brand new. They were. I went all the way Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month fees. Do you know? Soon Lali went into to tell her mother. Rukumani appears looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went no more slowly. Seen anyone lurking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry. Through Mridu was a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with scores on his feet. She tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there is a beggar here. Poor thing, he had such boil on his feet. रवि बड़बड़ाया, मैं इसके बारे में ही सोच रहा हूँ, यह तो उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। 2 मिनट के बाद ये सड़क में चला जाएगा और हमें एक जोड़ी चप्पल इसे देनी है, तो कहाँ से लाएं वो चप्पल? आओ चलो घर की तलाशी ले लेते हैं। उसने मृदु और मीना को घर की ओर धकेला कि चलो अब चप्पल के लिए घर में देखते हैं कि किसकी चप्पल उसे दी जाए। जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नज़र किस पे पड़ी? एक अजीब सी दिखने वाली चप्पल पर पड़ी, जिसमें उसने आने पर देखा था, जिसको जब वो आ रही थी तब देखा था। रवि, उसने फुसफुसाया, कौन है वो? रवि ने जर्जर दिखने वाली चप्पल पर, मगर वो मजबूत चप्पल थी, उसकी ओर देखा और बहुत मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया कि यहाँ यही है जो उसके काम आ जाएगी। उसने उठाते हुए मृदु और मीना घबराकर वापस बगीचे में उसके पीछे हो लिए। मतलब वो चोरी करके ले जा रहा था, तो वो डरे डरे जल्दी से भाग के गए। यहाँ रवि ने भिखारी से कहा, बूढ़े आदमी के सामने वापस गिराकर इन्हें पहनो और वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को देखा और जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधे पर फेंक दिया और अपने पैरों में उस चप्पल को धकेल दिया। मीन्स उन्हें पहन लिया और बच्चों को आशीर्वाद देके वहाँ से चला गया। 1 मिनट में वह गली के कोने में से गायब हो गया, मतलब दिखाई नहीं दिया उसके बाद वो। अब जो म्यूजिक मास्टर थे वो घर से बाहर आए अपनी क्लास ख़त्म करके, और तीनों वहाँ चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए कंचे बजाते हुए बैठे हुए थे तीनों। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढी म्यूजिक मास्टर ने, जहाँ उसने रखी थी लाली। कुछ ही देर बाद उन्होंने लाली को बुलाया कि लाली, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। वह उनके पास गई। क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है कि मैंने यहीं रखी थी। अब रवि, मृदु और मीना चुपचाप और लाली संगीत गुरु के बरामदे के कोने में खोजते खोजते इधर उधर देखते हैं। वह इधर उधर भागा, रेलिंग की ओर देखा और फूलों के गमले के पास भी झुक झुक के उसने पेड़ों के उधर देखा कि कहीं अंदर तो नहीं घुसा दी किसी, पर उनको कहीं भी चप्पल नहीं मिली। अब वो बोलने लगे, जैसे अब किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो वो कहने लगे, मैं उस चप्पल को ख़रीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। और वह ये भी बोलते जा रहे हैं कि तुम्हारी 1 महीने की फ़ीस की जितनी की चप्पल है वो। क्या तुम जानते हो कि वो 1 महीने की फ़ीस की जितनी चप्पल है? जल्द ही लाली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। अब वो लाली भी परेशान हो गई, अपनी माँ को बुला के ले आई। रुकुमनी परेशान दिख रही थी और पाती उसका पीछा कर रही थी। वे कौन हो सकता है, यह सोचकर वह वास्तविक में काफ़ी परेशान हो रही थी कि किसी ने चप्पल चुरा ली है। इतने सारे विक्रेता दरवाजे पर आते हैं, पाती को चिंता हुई। रुकुमनी ने पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना को देखा। उन्होंने पूछा, उत्सुकता से शांत थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी को दुबके हुए देखा? उनके वो कहते हुए उनकी भौहें जो थी, उनकी एक वी आकार, जैसे गुस्सा आता है तो वी आकार की एक लाइन उनके माथे पर बन रही थी। अब रुकुमनी जो थी वो बहुत गुस्से में थी और वो बहुत, मतलब जब गुस्सा आता है तो एक कपकपी सी होती है ना, उस तरह से वह बहुत परेशान होती हुई वो कहती है, अगर ये भिखारी जो है उनके दरवाजे पे नहीं आया होता तो, और उसके पैर में छाले थे। उन्होंने खुद को बताने की कोशिश की, मतलब वो खुद से अपने आप ही सोच रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह रो पड़ी। अब वह अपने मन में सोच रही है, भिखारी जो था उसके पाँव में बड़े बड़े छाले थे। जो भिखारी उसके घर के बाहर आया था उसके पाँव में छाले थे।
So said Rukumani grimly, turning to Ravi. You gave the music master chappals to that old beggar who turned up here. Children these days grown Pati. Amma did not tell you about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and genius. Silly, snapped Rakumani. Karna did not give away other people's things, he only gave away his own. But my chappals would not have fitted beggar feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukumani, very angry now. So go inside this minute. She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you. Sir, please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I supposed there will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she was him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how to do children think of such things? Thank God your Gopu Mama does not wear this chappal to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब रुकुमनी ने पीछे की तरफ गुस्से में मुड़ते हुए रवि से पूछा कि क्या तुमने जो भिखारी आया था उसे संगीत मास्टर की चप्पल दे दी? अब पाती भी चिल्लाई तो वह बोला, अम्मा क्या तुमने नहीं बोला था कि कर्ण जो है वो कितना दयालु और उदार था? वह अपनी सारी चीज़ें दूसरे को दान कर देता था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी दान कर देता था। तो रुकुमनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा वह दूसरों की चीज़ें नहीं करता था, अपनी चीज़ें दान करता था। लेकिन मेरी चप्पल तो उनके पाँव में फिट ही नहीं आती। रवि ने बोला कि मेरी चप्पल उनके भिखारी के पाँव में फिट नहीं आती, और अम्मा अगर वे फिट होती तो क्या आप बुरा नहीं मानते इस बात का? फिर रुकुमनी को और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बोला 1 मिनट में अंदर जाओ, और वह जल्दी जल्दी अंदर चली गई। गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पलें बाहर ले आई। ये अब उनको फिट होनी चाहिए। सर आप इसे पहन लीजिए, माफ़ कीजिए मेरे बेटे बहुत शरारती है, उसने बोला। संगीत गुरु जो थे उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने उसे पहन लिया और खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा मुझे लगता है कि ये करना ही पड़ेगा। आजकल बच्चों को बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आता। ऐसे बच्चों से तो श्री राम ही बचा सकते हैं। रुकुमनी की आंखें चमक रही थी। वे अपने बेटे को वानर कहलाना पसंद नहीं करना चाहती थी वो, लेकिन उसने सामने के दरवाजे पे सख्ती सीधी खड़ी हुई थी और वह चाहती थी कि अब मास्टर जी जो हैं संगीत मास्टर चले जाएं। जब म्यूज़िक टीचर चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और नाश्ता कराया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि गोपू मामा जो हैं वो चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं जाते, पर दफ्तर से लौटने पर उनको इस चप्पल की ज़रूरत होगी। तो उन्हें लगा कि वे उन्हें क्या कहेंगी, और उन्होंने इस घटना का आरोप अपने ऊपर लेने का फैसला ले लिया। Chapter is completed. If you like the video, share with your all friends.